students. Now, today we will study about the topic Coulomb's law of electric force. इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन किस तरह से कैलकुलेट करें, ये हम कूलम्ब्स लॉ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कूलम्ब्स लॉ क्या है। नाउ स्टेटमेंट ऑफ कूलम्ब्स लॉ इज दैट if two charges Q1 and Q2 placed distance R apart from each other in vacuum. Now here you have to write 2-point charges, 2-point charges, because the Coulomb's law is applicable or holds good for point charges. So the 2-point charges Q1 and Q2 place distance are apart from each other in vacuum. Then according to Coulomb's law, the force of attraction or repulsion between two stationary point charges is directly proportional to the product of the magnitude of two charges and inversely proportional to the square of the distance between the charges. So this is the statement of Coulomb's law. 2-point charges Q1 and Q2 place distance are apart from each other in vacuum. Then according to Coulomb's law, the force of attraction or repulsion between two stationary point charges is directly proportional to the product of the magnitude of two charges and inversely proportional to the square of the distance between the charges. So like that, if one charge Q1 separated by distance R from other charge Q2, then according to Coulomb's law, force F between these two charges is directly proportional to the product of the magnitude of two charges and inversely proportional to the square of the distance between the charges. And
from these two equation we can write force F is directly proportional to Q1 Q2 upon R square, and when that proportionality sign here we remove, and we get a constant K Q1 Q2 upon R square. Here constant K, the value of that constant K is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught, where epsilon naught is the permittivity of फ्री स्पेस. ये परमिटिविटी क्या होती है मैं अभी आपको आगे बताता हूँ. एंड वैल्यू ऑफ दैट एप्सिलॉन नॉट इज 8.854 into 10 raised to power minus 12, 10 raised to power minus 12 coulomb square per Newton per meter square. And if we place that value of permittivity in 1 upon 4 pi epsilon naught, then we get K is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught is equal to 9 into 10 raised to power 9 Newton meter square per coulomb square. And formula for electric force in vacuum is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square. If you place the value of that 1 upon 4 pi epsilon naught, then you get 9 into 10 raised to power 9 Q1 Q2 upon R square. So my dear students, if you want to calculate the force between the 2 point charges which are placed in vacuum at certain distance apart, then formula is that 9 into 10 to the power 9 Q1 Q2 upon R square. Now here we can define the SI unit of the force, which is the coulomb, from that formula. Now how can we define? ये हम समझते हैं, हम इसको कैसे डिफाइन करें 1 कूलम को. तो हम इसको डिफाइन करके देखते हैं कैसे डिफाइन करेंगे. देखिए F is equal to 9 into 10 raised to power 9 Q1 Q2 upon R square. If Q1 is equal to Q2 is equal to 1 coulomb and R is equal to 1 meter, then F is equal to 9 into 10 raised to power 9 Newton. Now, how can we frame the definition of 1 coulomb from here? कैसे हम इस डेफिनेशन को बनाएं, कैसे डिफाइन करें? तो देखिए 1 coulomb is that much charges when two equal and similar
charges placed in vacuum at distance 1 meter apart exert 9 into 10⁹ Newton force. 1 coulomb is that much charge when two equal and similar charges placed in vacuum at distance 1 meter apart exert 9 into 10⁹ Newton force. तो इस तरह से हम यहाँ से 1 coulomb को डिफाइन कर सकते हैं. दिस इज द SI यूनिट. नाउ इन CGS electrostatic system, the unit of electric charge is state coulomb. और ESU of charge, electrostatic unit of charge. CGS सिस्टम में इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट स्टेट कूलम होती है एंड 1 कूलम इज इक्वल टू 3 into 10⁹ स्टेट कूलम. ये कूलम और स्टेट कूलम में रिलेशन होता है. ओके माय डियर फ्रेंड्स, नाउ अब हम ये जानते हैं कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम इस कूलम्स लॉ को वेक्टर की फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो कैसे हम कूलम्स लॉ को वेक्टर की फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, आइए हम ये समझते हैं. Coulomb's law of electric force in vector form. वेक्टर फॉर्म को समझने के लिए हम दो इलेक्ट्रिक चार्ज Q1 और Q2 कंसीडर करते हैं. दोनों लाइक चार्जेस हैं. लाइक चार्जेस मतलब एक दूसरे को ये रिपेल करेंगे. इन दोनों के बीच का सेपरेशन R है. नाउ चार्ज Q1 पर Q2 की वजह से फोर्स लग रहा है F12, दैट इज फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2. सिमिलरली Q2 पर Q1 की वजह से फोर्स लग रहा है दैट इज F21. और चार्ज Q1 से चार्ज Q2 की तरफ की डायरेक्शन को हम R12 कैप यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं. मतलब इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर R12 कैप है और Q2 चार्ज से Q1 चार्ज की तरफ डायरेक्शन है वो R21 कैप वेक्टर से हम रिप्रेजेंट करते हैं. अब देखिए, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2, that is F12, that is 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R स्क्वायर, दोनों के बीच का डिस्टेंस. और ये जो F12 फोर्स है बेटा, ये फोर्स चार्ज Q2 से Q1 की तरफ लगा है और इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर R21 कैप है. तो अपन यहाँ पे R21 कैप लिख देंगे क्योंकि ये फोर्स Q2 से Q1 की तरफ लगा है. राइट. सिमिलरली फोर्स ऑन
due to charge Q1, that is F21 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square, and ये फोर्स 1 से 2 की तरफ लग रहा है, तो हम यहाँ लिख देंगे R12 कैप. This is the force on charge 1 due to 2, and this is the force on charge 2 due to 1. And as we know that the vector R12 की डायरेक्शन, R12 कैप की डायरेक्शन R21 कैप की डायरेक्शन के अपोजिट है और दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर बराबर है. तो यदि हम इसका यूज इक्वेशन 1 और 2 में करें, देन वी गेट F12 इज इक्वल टू, मैं इस इक्वेशन 1 में R21 या इस इक्वेशन 2 में समझ लीजिए, इस इक्वेशन 2 में R12 की जगह में माइनस R21 प्लेस करता हूँ, राइट. तो हियर दैट इज F21 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. अब मुझे इस R12 की जगह क्या रखना है, माइनस R2, तो माइनस साइन ये, और दैट इज R21 कैप, राइट. और ये आप देखिए 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, R21 कैप क्या है आपका F12. तो F21 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F12, मीनिंग दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स are equal in magnitude and opposite in direction. यहाँ पे ये एक इम्पोर्टेंट कंफ्यूजन निकलता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो मैग्नीट्यूड में तो बराबर है और डायरेक्शन में एक दूसरे के अपोजिट है. तो इस तरह से हम कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं. और ये देखते हैं कि फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर होता है और एक चार्ज जितना पहले चार्ज पर फोर्स एक्सर्ट करता है उतना ही पहला चार्ज दूसरे पर एक्सर्ट करता है. दैट इज द इम्पोर्टेंट कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम द वेक्टर फॉर्म. चलिए अब हम परमिटिविटी क्या होती है उसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि परमिटिविटी के बारे में हम आपको बाद में डिस्कस करेंगे. तो परमिटिविटी क्या होती है उसको मैं आपको समझाता हूँ. परमिटिविटी बेसिकली परमिटिविटी मीडियम की एक प्रॉपर्टी है जो ये डिटरमाइन करती है कि दो चार्ज पार्टिकल उस मीडियम में रखे हुए हैं तो उन दो चार्ज पार्टिकल के बीच में कितना फोर्स लगेगा. मीनिंग दैट इज इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम. मतलब परमिटिविटी मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी. इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम दैट determine how much electric force exert between two stationary point charges
placed in that medium. मतलब अगर हम उस मीडियम में दो स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस को किसी डिस्टेंस पर रखेंगे तो उन दोनों के बीच में कितना फोर्स लगेगा, ये उस मीडियम की एक प्रॉपर्टी डिटरमाइन करती है। उस प्रॉपर्टी को ही हम परमिटिविटी कहते हैं। तो देखिए बेटा, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस placed in vacuum is given by, जैसा कि हमने देखा, F is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square। ये वैक्यूम में है तो मैं यहाँ पे बेटा वैक्यूम लिख देता हूँ। सिमिलरली इन मीडियम, अगर यही दो चार्ज किसी मीडियम में रखे हुए हों तो फोर्स को हम लिखेंगे Fm, दिस इज मीडियम, एंड 1/4 pi epsilon Q1 Q2 upon R square। अब आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ पे एप्सिलॉन है। ये एप्सिलॉन फ्री स्पेस की परमिटिविटी है और ये मीडियम की परमिटिविटी है, राइट। तो दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब यदि हम इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करें, मतलब 1 यदि F वैक्यूम और F मीडियम का रेशियो निकालें तो हमको क्या मिलेगा, ये Q1 Q2 पर R स्क्वायर, Q1 Q2 R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1/4 pi कैंसिल हो जाएगा, तो अपन को क्या मिलेगा, हमको मिलेगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इस रेशियो को बोलते हैं एप्सिलॉन R और कैपिटल की। ये एप्सिलॉन R और कैपिटल के होता है रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी और डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको रिलेटिव परमिटिविटी या डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। यहां से हम इस रिलेटिव परमिटिविटी और डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं। बच्चों नोट कीजिए, the relative permittivity or dielectric constant is defined as the ratio of the force between the two charges at rest in vacuum placed certain distance apart to the force between the same two charges placed same distance apart in medium। मतलब दो चार्जेस को वैक्यूम में रखें किसी डिस्टेंस पर, उनमें कितना फोर्स लगेगा, उसका उन्हीं दो चार्जेस को मीडियम में रखें उसी डिस्टेंस पर, तो उनके बीच में कितना फोर्स लगेगा, इन दोनों फोर्स का जो रेशियो है उसी को हम रिलेटिव परमिटिविटी या डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। इसको हम एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ द मीडियम है, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस है, तो इसको अपन यहाँ से भी डिफाइन कर सकते हैं। द डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी में आल्सो बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, दैट इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी, राइट। तो यहाँ से भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी को, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बेटा, ये कई बार एग्जाम में पूछते हैं। डिफाइन द डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ फोर्स, डिफाइन द डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ परमिटिविटी। इसकी और भी डेफिनेशन आएगी जो हम आपको आगे वाले चैप्टर से पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और कैपेसिटेंस और पोटेंशियल, उनकी टर्म्स में भी आपको हम बताएंगे किस तरह से हम रिलेटिव परमिटिविटी और डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को इलेक्ट्रिक फील्ड और कैपेसिटेंस की टर्म्स में डिफाइन करें। जब हम वहाँ डिस्कस करेंगे तो आपको वापस से इसको पता ही पड़ेगा। चलिए अब देखिए बेटा,
फोर्स से रिलेटेड हम प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। किस तरह से इलेक्ट्रिक फोर्स पे बेस्ड प्रॉब्लम्स एग्जाम में पूछी जाती है। तो अपन एक प्रॉब्लम लेते हैं। सपोज दो चार्ज हैं, मैं एक प्रॉब्लम आपसे डिस्कस कर रहा हूं। लेट टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फेयर्स, बच्चे लिखिए, टू इंसुलेटेड चार्ज copper spheres A and B having their centers separated by a distance of 50 centimeter. Two insulated charged copper spheres A and B have their centers separated by a distance of 50 centimeter. दो insulated charged copper sphere हैं A और B, दोनों 50 centimeter distance सेपरेट है। What is the mutual force of electrostatic repulsion if the charge on each is 6.5 into 10 to the power minus 7 coulomb? What is the mutual force of electrostatic repulsion if the charge on each is 6.5 into 10 to the power minus 7 coulomb? The radii of A and B are negligible compared to the distance of separation. मतलब दोनों point charges हैं। Two insulated charged copper spheres A and B have their centers separated by a distance of 50 centimeter. What is the mutual force of electrostatic repulsion if the charge on each is 6.5 into 10 to the power minus 7 coulomb? ये क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी में गिवन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ये हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए दो चार्जेस हैं, दोनों बराबर हैं, 6.5 into 10 to the power minus 7 coulomb। दूसरा चार्ज भी इतना करना है, 6.5 into 10 to the power minus 7 coulomb। और दोनों चार्ज एक दूसरे से 50 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखे हुए। कितनी डिस्टेंस पर रखे हुए? 50 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखे हुए। तो बेटा जैसा कि हम जानते हैं ये दोनों चार्ज वैक्यूम में रखे हुए हैं, तो फोर्स का फॉर्मूला वैक्यूम में होता है 9 into 10 to the power 9 Q1 Q2 upon R square। तो यहाँ पे आप Q1 Q2 की वैल्यू पुट कर दीजिए। Q1 आपके पास 6.5 into 10 to the power minus 7, नेक्स्ट Q2 भी 6.5 into 10 to the power minus 7, और R स्क्वायर 50 सेंटीमीटर है, तो इसको आप मीटर में बदलिए। जब इसको मीटर में बदलेंगे तो हमको मिलेगा 0.5 इसका स्क्वायर। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, देन आपको रिजल्ट मिलेगा दैट इज 1.5 into 10 to the power minus 2 न्यूटन। राइट, ये आपको रिजल्ट मिलेगा। इस तरह से ये बेसिक क्वेश्चन है कि किस तरह से हम फोर्स दो चार्ज पार्टिकल के बीच में कैलकुलेट करना है। तो ध्यान ये रखना है जो वैल्यूज आप पुट कर रहे हैं वो प्रॉपर ऐसा यूनिट में हो। जैसे सेंटीमीटर है तो उसको अपने मीटर में कन्वर्ट किया, फिर वैल्यू को पुट किया, क्योंकि कूलम भी मीटर ऐसा यूनिट है और उसको भी मीटर में आपको बदलना पड़ेगा, तभी आपका रिजल्ट मीटर में आएगा। अब देखिए इसी क्वेश्चन को मैं स्लाइटली थोड़ा सा और मॉडिफाई करता हूँ। राइट, नेक्स्ट आप लिखिए, व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन इफ each sphere is charged double the above amount? Okay, what is the force of repulsion if each sphere is charged double the amount and the distance between them is halved? What is the force of repulsion if each sphere is charged double the amount and the distance between them is halved? मतलब दोनों स्फेयर के चार्ज को अपन डबल कर देते हैं और उन दोनों के बीच की डिस्टेंस को अपन आधा कर देते हैं, हाफ कर देते हैं। तो अब चार्ज की फोर्स किस तरह से अफेक्ट होगा वो डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि यहाँ बताया गया है
नेक्स्ट क्वेश्चन में चार्ज ऑन ईच स्फीयर gets doubled and distance between the charges gets half। तो फोर्स किस तरह से अफेक्ट होगा, देखिए F इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹। अपन ने क्या करा, चार्ज को डबल कर दिया, ईच चार्ज 2q डबल हो गया, डिस्टेंस को अपन ने आधा कर दिया, दैट इज r/2 इसका स्क्वायर। देन अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 to 4, ये 1/4, ये हो जाएगा आपका 16, 2 to 4 और ये 1/4, रेसिप्रोकल होगा ना 4:4, कितना आएगा 16 इंटू 9 इंटू 10⁻⁹ q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। मतलब जो अपने पास ये ओरिजिनल फोर्स आया है 1.5 इंटू 10⁻² न्यूटन, इसका 16 टाइम है, मतलब F इज इक्वल टू 16 इंटू 1.5 इंटू 10⁻²। तो इस तरह से जब हम दोनों चार्ज का चार्ज डबल कर देंगे, उनके बीच का सेपरेशन आधा कर देंगे, तो फोर्स 16 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर बेटा? चलिए अब हम एक एग्जांपल और लेते हैं। ये एग्जांपल बेसिकली इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है, बट कंसेप्ट इसमें लागू जो होगा वो शेयरिंग ऑफ चार्ज का कंसेप्ट लागू होगा कि चार्ज जब आइडेंटिकल बॉडीज पर होता है और दोनों बॉडीज को जब हम टच करते हैं तो चार्ज दोनों बॉडी पे शेयर हो जाता है। इस कंसेप्ट पे से क्वेश्चन लेते हैं हम। तो क्वेश्चन लिखिए बेटा, सपोज द स्फीयर्स ए एंड बी इन द प्रीवियस क्वेश्चन, जो भी हमने क्वेश्चन लिखा है इसी क्वेश्चन में, हैव आइडेंटिकल साइज, मतलब दोनों स्फीयर का साइज जो है वो आइडेंटिकल है। ए थर्ड स्फीयर ऑफ द सेम साइज बट अनचार्ज इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद द फर्स्ट, then brought in contact with the second, and finally removed from both. What is the new force of repulsion between A and B? मैं क्वेश्चन वापस से बोल रहा हूँ बेटा। Suppose the spheres A and B in the previous example have identical size. A third sphere of same size but uncharged is brought in contact with the first, then brought in contact with the second, and finally removed from both. What is the new force of repulsion between A and B? तो देखिए बेटा, अब इस क्वेश्चन में अपन ने क्या किया है, स्फीयर A, इस पर चार्ज कितना है, लेट इस पर चार्ज Q है, और दूसरा स्फीयर है C, इस पर चार्ज कितना है, अनचार्ज 0। जब इन दोनों स्फीयर को जब अपन कांटेक्ट में लाएंगे तो कांटेक्ट के बाद इन दोनों पर जो चार्ज होगा A पर और C पर Q + 0 डिवाइडेड बाय 2, इसका एवरेज, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल साइज के हैं, तो जब चार्ज आइडेंटिकल बॉडीज होती है तो उन पे जो चार्ज का शेयरिंग होता है वो इक्वल होता है। तो यहाँ पे Q/2 और Q/2 बिकॉज आइडेंटिकल साइज है, तो Q + 0 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज Q/2 चार्ज दोनों स्फीयर पर आ जाएंगे। अब अपन ने क्या किया है, दूसरा आइडेंटिकल स्फीयर B, इस पर भी Q चार्ज है। अब C को, जिस पर भी Q/2 चार्ज आया है, इसको B के कांटेक्ट में लेके आए। तो जब इसको B के कांटेक्ट में लाएंगे
तो इन दोनों का आप एवरेज निकालेंगे तो Q प्लस Q बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा? इसको जब आप सोल्व करेंगे तो यू विल गेट 3Q बाई 4। तो अब जब इन दोनों को अपन कॉन्टेक्ट में लाएंगे B और C को, तो दोनों पे 3Q बाई 4 चार्ज आ जाए। अब A और B को वापस से सेम डिस्टेंस अपार्ट रख दिया। A पर चार्ज था Q बाई 2, B पर चार्ज आ गया फाइनली 3Q बाई 4, सेम डिस्टेंस अपार्ट रख दिया है। तो अब फोर्स कितना हो जाएगा? F इज इक्वल टू, पहले फोर्स था F इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये जो पहले फोर्स था वो था 1.5 इंटू 10⁻⁹ मीटर। ये पहले क्वेश्चन में से रिजल्ट निकाला। अब जब Q1 की वैल्यू Q बाई 2 हो गई, Q2 की वैल्यू 3Q बाई 4 हो गई, R एज इट इज है, तो अब फोर्स कितना हो जाएगा? F इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ Q1 की वैल्यू Q बाई 2, इसकी वैल्यू 3Q बाई 4 अपॉन R स्क्वायर। तो देखिए 3Q बाई 4, ये हो गया टोटल 3 अपॉन 8 और इंटू 9 इंटू 10⁻⁹ Q आपका हो गया Q1 Q2 Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। और इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है आपके पास? Q1 Q2 दोनों बराबर है, तो Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर दैट इज 1.5 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन। तो ये आपके पास हो जाएगा 3 अपॉन 8 इंटू 1.5 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन। इतना फोर्स अब दोनों चार्ज के बीच में एक्सर्ट करेगा। तो इस तरह से अगर कोई क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि दो आइडेंटिकल साइज की बॉडी को जब अपन टच करते हैं तो उन दोनों के बीच में जो चार्ज होता है वो शेयर हो जाता है, उनका एवरेज निकाल के इस तरह से आपको प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करना है। ओके, थैंक यू। तो आप इससे रिलेटेड और प्रॉब्लम्स भी आपकी टेक्स्ट बुक में और रेफरेंसेस में देखिए और सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी फोर्स से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम को और डिस्कस करेंगे और नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे विच इज़ द इलेक्ट्रिक